Good morning to all of you. I, Amit Kumar, welcome you all in IIT Manthan. So, as you all know, that we have started our chapter motion, and in motion chapter we have done lot of things about linear motion and circular motion. So we have done the differentiate between linear motion and circular motion. So what is our displacement, what is speed, what is velocity, what is acceleration, what is average velocity, average speed, and we have done the graphical questions on the motion, and then we have come to circular motion. In circular motion we have done the differences between linear motion and the circular motion. So, and we have also done the similarities between the linear motion and the circular motion, and also the dissimilarities between linear motion and the circular motion. Like in linear velocity there will be the in linear motion there will be linear velocity, and in circular motion there will be angular velocity. In linear motion there will be linear acceleration, and in circular motion there will be angular acceleration. In linear motion there will be certain quantities that the path will be linear, and here it will be circular. So the dissimilarity between linear motion and the circular motion, that in linear motion the linear velocity is having the unit meter per second, and in circular motion the unit will be radian per second. And in come on to linear motion, in linear motion the unit of linear acceleration is meter per second square, and the unit of angular acceleration in circular motion will be radian per second square. So these are the similarities and the dissimilarities between linear motion and the circular motion. And one more thing, for a body or a particle continue to move in along a circle, there should be a force required. That force is centripetal force, or it may be centrifugal force. So there are two types of forces acting on a body when it is moving along a circle. So if it is moving along a circle, one of the force which is acting and is it directed towards the center of circle, that is called centripetal force. So centripetal force is the force required to make the body move along the circle, and it is directed always towards the center of the circle. Similarly, the centrifugal force is the force which is required to move the body along a circle, but this force is always directed outwards from the center of the circle. So this is the difference, and we have done the relation between angular velocity and the linear velocity, like v is equal to omega r, and also we have done the expression between linear acceleration and the angular, that is a is equal to alpha into r. Similarly, we have done lot of expressions. So let us try some numericals. So I am writing here question. So a ball of mass 0.1 kg is whirled in a horizontal circle of radius 1 meter by means of a string at an initial speed of 10 rpm. तो क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 kg. So mass of the ball is 0.1 kg. तो एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, उसको हमने एक सर्कल में घुमाया जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर है. R इज योर 1 मीटर विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग. तो हमने एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक सर्कल में घुमाया, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, और जब वो घूम रही थी तो उसकी स्पीड कितनी है 10 rpm. तो स्पीड, एंगुलर स्पीड इज योर
10 RPM. RPM means revolution per minute. Now, keeping the radius constant, the tension in the spring is reduced to 1/4 of its value. वो कह रहा है कि अगर मैं रेडियस को कांस्टेंट रखता हूं, तो वैसे भी कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगी. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस. टेंशन मीन्स फोर्स. टेंशन मीन्स फोर्स. तो सबसे मेन चीज क्या है कि क्या बोल रहा है, टेंशन. टेंशन जो है वो टेंशन गेट्स रिड्यूस्ड टू 1/4 of its initial value. Let initial value is your T naught. So you have to find tension. Sorry. तो क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी बॉडी का मास 0.1 kg है और उस बॉडी को उसने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है जिस और एक सर्कल में घुमा रहे हैं. उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 मीटर. और वो जब घूम रही है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 रेवोल्यूशन पर मिनट. फिर वो कह रहा है कि अगर मैं रेडियस को कांस्टेंट रखता हूं तो ऐसा करने पे जो मेरा टेंशन है, टेंशन मीन्स फोर्स, टेंशन जो है वो मेरा 1/4 रिड्यूस हो जाता है जो कि मेरा टेंशन इनिशियल था. तो आपको न्यू स्पीड निकालनी है. टू फाइंड न्यू स्पीड आपको निकालना है, न्यू स्पीड. तो सबसे पहले टेंशन को देखते हैं. टेंशन होता है फोर्स, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है. और ए हमारा क्या होता है, ए हमारा v²/r होता है. मैंने आपको बताया था v²/r लिख सकते हो. और यू कैन राइट v की वैल्यू कितनी होती है, r ओमेगा. तो r ओमेगा का स्क्वायर बाय r एंड a विल बी, ये कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर r. तो m ए, क्योंकि हमें एंगुलर स्पीड दी हुई है तो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है. अब कह रहा है कि r कांस्टेंट है. क्या है, r कांस्टेंट है. क्या लिख रहा है, कीपिंग रेडियस कांस्टेंट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस टू 1/4. फाइंड द न्यू स्पीड. तो हमें क्या निकालना है, हमें न्यू स्पीड निकालनी है. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए टेंशन क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r. अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, क्या होगी, m क्या होता है, ओमेगा 2π/t होता है. और यू कैन राइट 2πn. सो 2πn का स्क्वायर इंटू r, m इंटू 4π² n² r and t. सो m इज कांस्टेंट क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा. 4 इज ए कांस्टेंट, ठीक है. पाई भी कांस्टेंट होता है और r तो है ही कांस्टेंट. तो t क्या आ गया, t इज इक्वल टू n². t क्या आ गया, n² आ गया. t क्या आ गया, n². तो अब देखिए, तो n² इक्वल टू क्या आ गया मेरा, t आ गया. n क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज आरपीएम. तो n², अब देखिए n1² प्रोपोर्शनल टू t1 और n2² प्रोपोर्शनल टू t2, ठीक है. सॉरी, नॉट प्रोपोर्शनल, इक्वल. तो मुझे निकालना है सेकंड स्पीड. तो n2/n1 इज इक्वल टू हाउ मच,
T2 बाय T1, T2 कितना होता है 1/4, तो ये कितना है T है, इट मीन्स N2 बाय N1, तो T से T कट गया, सो इट इज 1/2 N1, तो N2 कितना आ गया, N2 इज 1/2 इंटू 10, सो N2 इज इक्वल टू 5 RPM। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको एक बॉडी दी हुई है जिसका मास 0.1 kg दिया हुआ है और आपको वो बॉडी सर्कल में घुमानी है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, जिसकी सर्कल का रेडियस कितना है 1 मीटर है, और जब वो घूम रही है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, 10 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपको क्या करना है, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, वो कह रहा है कि रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए द टेंशन गेट्स रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, मीन्स प्रीवियस टेंशन, इनिशियल टेंशन, जो पहले टेंशन था मतलब जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/4 फोर्स हो जाता है अगर मैं रेडियस को कांस्टेंट रखता हूं। तो उस कंडीशन पे आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड। तो क्या करेंगे, मास कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो टेंशन क्या होता है, फोर्स, फोर्स होता है m इंटू ए, और हमें पता है a क्या होता है v²/r, लेकिन हमें लिखना है एंगुलर मोशन में, तो v को लिखेंगे हम r ओमेगा, तो व्हाट इज इट r²ω²/r, तो यहां ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर r²ω²/r, so it will be cancel out ω²r, तो a की वैल्यू मैंने पुट कर दी ω²r। अब ओमेगा क्या होता है 2π/t या 2πn, तो 2πn, सो m इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, π² इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, तो मींस t इज इक्वल टू n², और हमें निकालना क्या है, एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो n² इज इक्वल टू t, इट मींस रिलेशन क्या आ गया कि आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड आपकी टेंशन के इक्वल आ गई। सो राइट द इक्वेशन, n1² इज इक्वल टू t1, n2² इज इक्वल टू t2, तो n1 क्या है, गिवन स्पीड है, t1 क्या है, गिवन टेंशन है, टेंशन में t मान रखा है, ठीक है। तो n2/n, मुझे क्या निकालना है, सेकंड स्पीड निकालनी है, तो इसको, इस पूरी को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, n2/n1 इज इक्वल टू √t2/t1, क्योंकि n2 क्या होगा √t2, n1 क्या होगा √t1, तो n2/n1 इज इक्वल टू t2 इज 1/4t, ठीक है, t कैंसिल हो गया, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आया 1/2, n1 यहां रखा, n1 की वैल्यू कितनी है 10, और ये क्या आ गया n2 इज इक्वल टू 5 RPM, बिकॉज इट्स 10 RPM, तो स्पीड कितनी आ गई 5 RPM आ गई, 5 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन ऑफ मास 1 kg tied to the end of a string of length 1 meter is whirled in a horizontal circle with a uniform angular velocity of 2 radian per second. Find the tension in the string. तो क्या बोल रहा है, तो एक स्टोन है जिसका मास क्या है 1 kg, और उस स्टोन को हमने एक स्ट्रिंग की लेंथ से बांध दिया है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, हमने उस रस्सी के एक सिरे पे 1 kg मास का स्टोन बांध दिया, फिर हमने क्या किया, उसको ऐसे घुमाया सर्कल में, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं, क्या गिवन है आपके पास, मास गिवन है m कितना है 1 kg। अब देखिए
ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, रेडियस होगी, मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 1 मीटर। सो रेडियस 1 मीटर है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। टेंशन निकालना है तो बहुत बिल्कुल इजी है। टेंशन टी, टी क्या होता है, m इंटू ए होगा, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ए मुझे किस टर्म में क्या क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m कितना है 1, ओमेगा 2 स्क्वायर, आर 1, कितना आ गया 4 न्यूटन। बहुत सिंपल था। आपको एक स्टोन दिया हुआ है, उसका मास कितना दिया हुआ है 1 kg। एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है और उस 1 kg मास वाले स्टोन को आपने एक रस्सी के एक सिरे पे बांध दिया और आपने क्या किया, उस रस्सी की लेंथ कितनी है 1 मीटर है और उसको आपने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। जनरली हम क्या बच्चे करते हैं, रस्सी ली, रस्सी पे कुछ भी बांध दिया, कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह बांध लिया तो ऐसे घुमाते हैं। तो वो क्या है, मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक दैट स्टोन रोटेटिंग इन ए सर्कल एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक सर्कल ऐसे होता है, ये होता है वर्टिकल सर्कल और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल। मीन्स ये सर्कल कौन सा है, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो चीजों को लाइक दिस, सी अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सर्कल, मीन्स यू आर रोटेटिंग द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई है तो वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो आपको बॉडी का मास दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। आपको टेंशन निकालना है। टेंशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एंड m इंटू ओमेगा स्क्वेयर आर। सो इट मीन्स टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन विल बी 4 न्यूटन। तो टेंशन कितना आ गया, 4 न्यूटन टेंशन आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question is, a cord can bear a maximum force of 100 न्यूटन विदाउट ब्रेकिंग। तो क्या बोल रहा है कि एक रस्सी है जो कि मैक्सिमम फोर्स 100 न्यूटन सहन कर सकती है बिना तोड़े। इट मींस का मीनिंग क्या हुआ कि एक रस्सी है और इस रस्सी पे आपने कुछ भी लटका दिया, अगर इस रस्सी पे वेट हो या फोर्स हो, अगर 100 न्यूटन तक लगे, मीन्स अगर इस पे मैं 100 न्यूटन तक का वेट लगाता हूं तो ये रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है। लेकिन 100 न्यूटन से फालतू लगा दूंगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो क्या है, एक कोड है जिसकी मैक्सिमम फोर्स बियर करने की कैपेसिटी कितनी है 100 न्यूटन बिना टूटे। तो ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू द एंड ऑफ ए कोड। तो 1 किलोग्राम की बॉडी को टाई कर दिया उस रस्सी के एक सिरे पे, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया। व्हाट इज द मैक्सिमम लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी सो दैट द कोड डज नॉट ब्रेक, कोड डज नॉट ब्रेक। अब देखिए, जब भी मैं किसी रस्सी को घुमा रहा हूं, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो कोई चीज अगर ऐसे घूम रही है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स ये कब तक टूटेगी, जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक ये सर्कल में घूमती रहेगी। जैसे ये टूट जाएगी, ये क्या होगी, सर्कल से बाहर की तरफ गिरेगी, बाहर की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स
आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है टेंशन। टेंशन कितना है 100 न्यूटन टेंशन। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स 100 न्यूटन। देन बॉडी का मास इज 1 kg, मास 1 kg है। और कोड की लेंथ, सो लेंथ ऑफ द कोड मीन्स रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई क्या होगी, इट इज नोन एज रेडियस, दैट इज 1 मीटर। देखो ये रस्सी है, ये रस्सी बनाई तो ये क्या है, रेडियस है। ये रस्सी की लंबाई है, व्हाट इज इट इज रेडियस। सो एंड रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द मैक्सिमम लीनियर स्पीड, आपको क्या निकालना है, वी मैक्स निकालना है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो अब देखो, जब रस्सी टूटेगी, जब रस्सी टूट जाएगी तो हमेशा जो आपका टेंशन है तो वो क्या होगा, mv²/r। तो लेट द वेलोसिटी मैक्सिमम इज v मैक्स। तो टेंशन क्या है, mv मैक्सिमम²/r। तो बिकॉज टेंशन क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ए क्या होता है, ए इज योर v²/r। क्योंकि गिवन क्वांटिटी क्या क्या है मेरे पास, आपके पास क्या क्या है, मुझे v तो निकालना है, टेंशन गिवन है और r भी गिवन है और मास भी गिवन है। तो टेंशन कितना है 100 इज इक्वल टू मास इज 1 kg, v मैक्स स्क्वेयर एंड r इज 1 मीटर। सो v मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, सो v max is equal to 10 meter per second. So maximum velocity should be how much, 10 meter per second, so that your string will not break, ठीक है। एक बार देख लीजिए दोबारा आप, टेंशन आपको दिया हुआ है, मास 1 kg दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कोड दैट इज मींस रेडियस आपको दिया हुआ है। टेंशन क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर आपको जो चीज दी हुई है आप उसका फॉर्मूला उसी टर्म्स में लिखेंगे। तो ए क्या होता है, ए होता है v²/r। हमें v तो निकालना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इट मींस ए क्या होगा v²/r, v इज v मैक्सिमम, तो v max²/r इंटू m। तो t क्या है 100, m 1 है, v max निकालना है, r 1 मीटर है। तो क्या करेंगे, v max स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा, 100 आ गया। v max कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी with which if the 1 kg mass of the body is tied to the cord and it is made to revolve in a circle and it will not break, clear। तो रस्सी आपकी कब तक नहीं टूटेगी, जब तक वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास इज सपोर्टेड, ए मास इज मीन्स एक मास को आपने सपोर्ट मीन्स कहीं पे रख दिया या कहीं बांध दिया। A mass is supported on a frictionless horizontal surface. It is attached to a string and rotates about a fixed center at an angular velocity omega naught. तो एक मास को आपने किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया है और उसको आपने एक स्ट्रिंग से बांध दिया एंड रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड सेंटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। वो क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये मान लीजिए आपका मास है, ठीक है, और ये कोई सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने ऐसे बांध दिया, मान लीजिए ये ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, ठीक ऐसे बंधा हुआ है, ये मास है, ठीक ऐसे बंधा हुआ है, क्लियर।
तो अब क्या होगा, ए मास इज सपोर्टेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सॉलिड सरफेस, इट इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एंड रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड सेंटर, और इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है वो, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फिर वो क्या क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब अगर रस्सी की लंबाई एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों डबल हो जाए तो टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा, अगर इनिशियली टेंशन टी नोट है तो इट मीन हमें क्या निकालना है। देखो गिवन क्या है, गिवन हमें हमारे पास m है, m कितना है, m इज योर m है, ये मास कितना है, लेट द मास इज m। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट। तो हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन कितना है, टी नॉट। तो ये इनिशियल कंडीशन पे है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अब देखिए टेंशन क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। अब ए, अब उसने क्या बोला कि स्ट्रिंग की लेंथ डबल होगी, मींस l विल बी 2l, और क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी, मींस 2 ओमेगा नेट हो गया। तो इट मींस l क्या होती है स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज टेकन एज द रेडियस, तो ये रेडियस होगी। तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर l, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो मास तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो मीन्स वी कैन राइट t इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर l, हमें निकालना है t। तो इनिशियली t क्या है, अब देखो दो इक्वेशन बन जाएंगी, t1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर l, t2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू 2l। ठीक है, पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, टेंशन टी नॉट था। जब लेंथ डबल हो गई और ओमेगा नॉट डबल हो गया इनिशियल का, तो वो टेंशन निकालना है। तो क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आ जाएगा, यहां कर लेते हैं इसको, t2 बाय t1, इट इज हाउ मच, इट इज 4 ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू 2l डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू l। तो l से l कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, t2 बाय t1, t2 बाय t1 इट इज 8, एंड व्हाट इज t, t1 इज t नॉट, सो मीन्स क्या आ गया, t2 विल बी, तो लेंथ को डबल करने पे और एंगुलर वेलोसिटी को भी डबल करने पे आपका जो टेंशन है वो कितना हो जाता है, वो गिए हुए टेंशन का 8 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, द टेंशन विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ द गिवन टेंशन या ओरिजिनल टेंशन। तो क्या था, आपको एक बॉडी दी हुई है, ठीक, उस बॉडी को आपने एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, लाइक दिस। ये एक मास, एक बॉडी है, आपने इसको कहीं ऐसी सरफेस पे रख दिया जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो और उसको किसी एक सेंटर से बांध दिया है और उस सेंटर के अबाउट वो रोटेट कर रही है, ठीक है। और उसके रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी क्या बोल रहा है वो, ओमेगा नोट है। क्या है, ओमेगा नोट। तो मास m हो गया और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा नोट, और टेंशन उसने बोल दिया टी नोट है इनिशियली। फिर कह रहा है कि अगर मैं उस रस्सी की स्ट्रिंग, सॉरी उस रस्सी की लेंथ को डबल कर दूं, मींस L विल बिकम नाउ 2L, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। और कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो पहले थी उसकी डबल कर दूं तो 2 ओमेगा नॉट, तो क्या हो जाएगा, इनिशियली इट इज m, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, और टेंशन क्या है, टी नॉट है। तो ये इनिशियली है, दीज कंडीशंस आर इनिशियली। और अब वो क्या बोल रहा है, नाउ लेंथ, अब मैं कह रहा है कि अगर वो लेंथ, देखो इनिशियली लेंथ क्या है, लेंथ ये है, अब लेंथ क्या हो जाएगी, 2L, तो नई लेंथ क्या बन गई, इसको एलन कर देते हैं, न्यू लेंथ इज 2L, और
न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। मुझे क्या निकालना है कि लेंथ डबल करने पे और एंगुलर वेलोसिटी डबल करने पे मेरी टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड हाउ मच टाइम्स इट विल बिकम टी नॉट। तो 2L 2 ओमेगा नॉट। तो टेंशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज नथिंग व्हाट इज, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर, एंड आर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इक्वेशन लिखी मैंने, पहले कंडीशन क्या दी हुई है, m तो कांस्टेंट है, m को नहीं लिख रहा मैं, तो t क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल आ जाएगा। तो T1 विल बी इक्वल टू, मैं T1 लिख रहा हूं फिलहाल, T1 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एल। ठीक, T2 मींस फाइनल कंडीशंस, T2 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना हो गया, डबल, तो डबल का स्क्वायर हो गया इनटू 2L। ठीक, मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू, दिस इज 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू 2L डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर एल। ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8। तो T2 बाई T1, तो T1 क्या है, T नॉट, T नॉट मीन्स ओरिजिनल टेंशन। तो T2 क्या होगा, मीन्स लेंथ को डबल करने पे और एंगुलर वेलोसिटी को डबल करने पे हमारा जो टेंशन है वो 8 गुना क्या हो गया, बढ़ गया, 8 गुना हो गया। तो अगर ओरिजिनल टेंशन जो भी था मेरे पास, लेंथ को डबल करने से और एंगुलर वेलोसिटी को डबल करने से वी विल फाइंड दैट कि हमारा जो टेंशन है अब वो 8 गुना हो गया है। एक बार देख लीजिए इसको। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि हम स्टेटमेंट को पढ़ के अगर हम ये निकाल पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है और किस तरह से उसको प्रोसीड करना है, तो ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को निकाल पाएंगे। सो दिस इज द ओनली इजी मेथड टू सोल्व एनी न्यूमेरिकल। लाइक आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको गिवन क्वांटिटी लिखनी है, गिवन क्वांटिटी को लिखने के बाद आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है, और जो चीज आपको निकालनी है वो गिवन क्वांटिटी से किस तरह से निकाल सकते हो, ये चीज भी देखनी है। सो विद दिस today's lecture is over. So I think you will go through this lecture, and I am trying my best to make your problems resolved out, but you people are not doing any text. So please go through the video lectures, and if any doubt is there, so you can chat in the app, so your problem will be resolved out at any cost. So stay at home, take care, be safe. Thank you.